हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा, एमडी डर्मेटोलॉजी। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो कि केईए से अफिलिएटेड हैं, जिसकी काउंसलिंग बॉडी केईए है और जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से अफिलिएटेड है, इन सारे कॉलेजेस में एमडी डर्मा ब्रांच का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग किस कॉलेज में क्या सीट मैट्रिक्स है, किस टाइप की सीट्स अवेलेबल है, आपको कौन से कॉलेज टारगेट करने चाहिए अगर आप हायर रैंक के ब्रैकेट में है, और आपको जो कम फीस वाले जो प्राइवेट कोटा की सीट्स है उसकी क्या कट ऑफ रहती है, एनआरआई कैटेगरी की क्या कट ऑफ रहती है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, एमडी डर्मेटोलॉजी जो है वो बहुत सबसे वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिमांडेड ब्रांचेस है। अगर दो ब्रांच के अगर कंपैरिजन करें, तो जो सारे ब्रांचेस का कंपैरिजन करें, तो एमडी डर्मेटोलॉजी हैपेंस टू बी द मोस्ट डिमांडेड ब्रांच इन एमडीएमएस। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में वी विल बी ओनली डिस्कसिंग अबाउट दोज कॉलेजेस विच आर अफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हुज काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी इज केईए। विल नॉट बी डिस्कसिंग अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ कर्नाटका। वेल, तो फ्रेंड्स देखिए, एज आई टोल्ड यू दैट एमडी डर्मा इज द वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड ब्रांच हियर। सो हियर if you belong to non Karnataka, if you have done your MBBS from outside Karnataka, then what are the types of seats which are available for you? देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सीट्स की, कौन सी टाइप्स ऑफ सीट्स अवेलेबल होती है, और अगर आपका स्कोर हायर साइड पे है तो आपको किस सीट को टारगेट करना चाहिए। वेल, इफ यू आर बिलोंगिंग टू नॉन कर्नाटका, इफ यू हैव डन योर एमबीबीएस फ्रॉम आउटसाइड कर्नाटका, देन इन दिस केस you will be having three types of categories of seat. The first type of the seat is P quota, that is called the private quota. It is also known as open quota. So what happens here is the open quota fee structure for all the colleges will be around 12,66,000 per annum, provided if there is no fees increment in this year. Well, so let us consider it as 13 lakh rupees. Now, because the fees is on the lower side, the cutoff will be always on the higher side. The cutoff will be very high. For private quota seats in Karnataka, the dermatology cutoff will be under 10,000. Means it might close around 9,000 to 9,200 for 13 lakh rupees fee structure. Kindly keep this thing in mind. The cutoff will always be on the higher side, and this is, I am talking about all India rank. I'm talking about all India rank. So the cutoff the dermatology will close in Karnataka around 9,000, 9,200 all India rank for private quota, that is open category of seats. See, if you have done MBBS from Karnataka, then you will be qualifying for GMP category seats also. The seats distribution of the seats in open category and GMP category we will be talking later in this video. So just be with us. So the thing is now ki if you are targeting the 13 lakh rupees fee structure seat, then you should be under 10,000 rank to get the MD Dharma in Karnataka. The second type of the seat what would be available is called the management quota, and that is others quota. It is also known as others quota. And the third type of the seat what is available would be NRI category seats. Now, one thing you should understand. Now, suppose if any college is having 100 seats total including all the branches, if they are having 100 seats, then 20% of the seats will be going under others quota as well as NRI quota combined. Out of this 20%, 15% would be under NRI category and another 5% would be in others category. So friends, देखिए एक चीज को समझना होगा कि others category की जो सीट होती है, others category उसमें केवल 5% की सीट होती है of the total intake of the college. अब now the thing is कि suppose कॉलेज के पास सारे ब्रांचेस मिला के, रेडियो, डर्मा, पीडिया, गायनी, सर्जरी, मेडिसिन, सारे ब्रांचेस मिला के उन लोग के पास सपोज 100 सीट है। अब ये कॉलेज का डिस्क्रिप्शन होता है कि which seat they will be putting under NRI category and in what quantity they will be putting under NRI category, and which seat under in what quantity they will be putting in others category. So kindly keep this thing in mind. See, there is a probability that some colleges will put 5 seats of radiology under NRI categories. There is a probability some colleges will put only 2 seats of radiology under NRI category. So this thing has to be kept in mind. Why I am discussing this thing is, suppose
Suppose if you are under, if you are coming under, if your rank is above 60,000, suppose if your rank is above 60,000, then the only way to approach MDMS in Karnataka, that is MDMS in dermatology, is through NRI category. अगर आपका rank 60,000 से ऊपर है friends, then the only option what would be available for you is through NRI category. आपको others category में allotment you will not be getting because there are only 5% of the seats. For this seat matrix also, for this NRI category, seat matrix cutoff will be discussing later in the video. So friends, keep one thing in mind. Suppose if your rank is around between 20,000 to 50,000, then you can approach dermatology through others quota. That is without any. And the difference between these two quota is the fees of these two quota will be same. But the difference between these two quota is that for others category, you will not be requiring NRI sponsorship letter. But if you are going through NRI category, then definitely it is must and should that you should have NRI sponsorship letter. So if your rank, if you are coming between 20,000 to 50,000 all India rank, then you can approach. There is a probability that you will get dermatology through others quota, but if you are above 50,000 rank, then the only probability, the only option available with you is through NRI category only, because 15% of the seats are reserved for NRI category. See, under NRI category, if your rank is around 90,000 or 1 lakh, or for that instance 1,05,000 also, there is high probability that you will be getting dermatology. In that case, you have to target those colleges whose intake is more and whose fees is on the higher side. So kindly keep this thing in mind. Now let us discuss about the seat matrix. First of all, we will be discussing the seat matrix regarding this NRI and management quota seat matrices. देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जेजेएम दावनगिरी के पास टोटल 4 सीटें हैं आपको एनआरआई कैटेगरी और अदर्स कैटेगरी मिला के। तो इस 4 सीट में से केवल 1 सीट आपको जाएगी अदर्स कैटेगरी में और बाकी की 3 सीटें आ जाएंगी आपको एनआरआई कैटेगरी में। तो जस्ट लुक एट द डिफरेंस, 4 सीट्स, इफ सपोज लाइक जेजेएम दावनगिरी इज हैविंग 4 सीट्स ऑफ डर्मेटोलॉजी अंडर एनआरआई कैटेगरी, सो आउट ऑफ दैट 1 सीट विल बी गोइंग इन अदर्स कैटेगरी and another 3 seats will be there in NRI category. That's why I am repeatedly saying the probability of getting the allotment under NRI category is always on the higher side, even if you are above 50,000 rank, or for that instance, even if you are in the category of 90,000 or 1 lakh rank. And if once the percent, if you are, suppose कि अभी आप eligible नहीं है, suppose अभी आप eligible नहीं और percentile reduce होने के बाद अगर आप eligible होंगे, then in that case the only option is through NRI category. After the reduction of percentile, if you are thinking that you will be getting the dermatology seat via others quota, then forget it, you will not get in Karnataka via others quota after the reduction of percentile. Now MS Ramaiya, they have only 2 seats, so there is a probability that there will be no seats in others quota, so keep that thing in mind. Kempegowda, only 2 seats, there is a probability there will be no seat under in others quota in Kempegowda. MRMC Gulbarga is having 3 seats, so out of these 3 seats, 2 seats will be under NRI, 1 seat will be under open category, others category. वही अगर उसके बाद अगर आप हम लोग देखें तो देखिए सबसे ज्यादा सीट किसके पास है, और सप्तगिरी के पास देखिए 5 सीटें हैं डरमा की, 5 सीटें डरमा की हैं, जिसमें से करीब मान के चलिए कि 1 सीट जाएगी आपको इसमें अदर्स कैटेगरी में और बाकी की 4 सीटें आपको चली जाएंगी एनआरआई कैटेगरी में। तो सप्तगिरी में भी एनआरआई कैटेगरी में अगर देखिए एनआरआई कैटेगरी में अगर 4 या 5 सीट किसी कॉलेज के पास है तो दैट इज कंसिडर अ गुड नंबर। कुछ कॉलेजेस तो ऐसे हैं जिसका इंटेक भी 4 का नहीं होता है, लेकिन जिसका इंटेक भी 4 का नहीं होता है, बट जस्ट इमेजिन कि दोज कॉलेजेस हु हैविंग 4 to 5 सीट्स under NRI category only, then that there the probability is very high for you to get the allotment. Well, let us discuss some other colleges. See, if you see here, Akash is also having very good amount of seats. Akash also 4 seats under NRI category. What about Vaidehi? See, Vaidehi is also having 4 seats under NRI category. Then Navodaya Medical College Raichur is also having 4 seats. AJ, one of the top level college in Mangalore, 4 seats under NRI category. So 1 seat. See, the advantage with AJ, Saptagiri and JJM is, and also Vaidehi. Now Vaidehi is that their fee structure is also on the higher side. The number of seats, the number
number of intake is on the higher side, as well as their fee structure is also on the higher side. Fee structure we'll be discussing later on in this video. So their fee structure is also on the higher side, their intake is also on the higher side. So there is very much high probability, even if you are in the range of 90,000, 95,000 rank, then also if you target these colleges, you will definitely get the allotment, friends. You will definitely get the allotment. Which colleges? JJM Medical College, Davangere, AJ Institute of Medical Science, Bangalore, Vaidehi Institute of Medical Sciences, Bangalore, Saptagiri Institute of Medical Sciences, Bangalore. These four colleges have the highest number of seats for MD Derma, and also their fee structure is also on the higher side. So the probability is always on the higher side that you will be getting the allotment. You will be getting the allotment under NRI category, even if your rank is on the higher side, above 80,000 or around 90,000. Saptagiri is having 5 seats. Just see, Akash is also having 4 seats. See, 4 seats under an NRI category for dermatology is considered a good amount of seats. Good amount of seat it is having. Then other colleges, if you see, like Ambedkar is having 2, SS Davangere is having 2, Nijalingappa Bagalkot is also having 2, Father Muller is having 3 seats. Then MVJ Bangalore is also having 3 seats. So if you calculate the total number of seats, it comes to around 64. Only 64 seats are available in Karnataka under NRI category. So if out of this 64, अगर ऐसे हम लोग कैलकुलेशन करें तो कम से कम 20 सीटें, 20 सीट्स चली जाएगी आपको अदर्स कैटेगरी में, और बाकी की जो 44 सीट्स हैं या 45 सीट्स हैं वो रहेंगी आपको एनआरआई कैटेगरी में। तो अब इस 45 सीट्स में से जो 4 कॉलेज हमने डिस्कस किए जिसकी ज्यादा इंटेक है और फीस भी हायर साइड है, वो हो गया जेजेएम, दूसरा वैदेही, तीसरा एजे, चौथा सप्तगिरी और पांचवा आकाश के पास भी अच्छा इंटेक है। तो इन सारे कॉलेजेस में आपको प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है फ्रेंड्स अलॉटमेंट मिलने की एनआरआई कैटेगरी में। देखिए अब हम लोग ओपन कैटेगरी के भी सीट मैट्रिक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ओपन कैटेगरी में एक चीज को आपको समझना होगा। अगर आप नॉन डोमिसाइल होल्डर हैं, अगर कर्नाटका के बाहर से आपने एमबीबीएस किया है और कर्नाटका के आप डोमिसाइल होल्डर नहीं है, तो आप क्वालिफाई करते हैं केवल ओपन कैटेगरी की सीट्स में। अगर आपने कर्नाटका से एमबीबीएस किया है तो आपके पास कर्नाटका का डोमिसाइल है, इन दैट केस यू क्वालिफाई फॉर जीएमपी कैटेगरी। अब देखिए ओपन कैटेगरी में जैसे आपको सीटें कम दिखेंगी। क्यों कम दिखेंगी? क्योंकि देखिए सीटें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। कुछ सीटें जीएमपी कैटेगरी में चली जाती है, कुछ सीटें जीएमपीएच कैटेगरी में चली जाती है जो हैदराबाद कर्नाटक रीजन के होते हैं, दैट इज फॉर कर्नाटका डोमिसाइल होल्डर। कुछ सीटें आपको ओपन कैटेगरी में रहती हैं। आफ्टर दैट उसके अलावा कुछ सीटें आपको इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए चली जाती हैं, कुछ सीटें आपको ये रिजर्व कैटेगरीज जो होती हैं 2A, 2B, 2C, ओबीसी उसके कैटेगरी में चली जाती हैं। तो आपको इसीलिए दैट इज द रीजन कि ओपन कैटेगरी में आपको सीटें कम दिखेंगी, ओपन कैटेगरी में सीटें कम दिखेंगी एंड इट्स रिपल इफेक्ट कम्स ऑन द कट ऑफ की जो है 9000 रैंक तक डर्मेटोलॉजी आपको क्लोज हो जाएगा। यहां पे आप जैसे कि आप देख रहे हैं जेजेएम में ओपन कैटेगरी में देखिए जीएमपी कैटेगरी में 1 सीट है और जेजेएम में ओपन कैटेगरी में केवल 2 सीट है। तो जस्ट सी द डिफरेंस। तो ये चीज होता है आपको ओपन कैटेगरी की सीट्स में। वही केम्पेगौड़ा में आप देखिए तो देखिए केम्पेगौड़ा में जीएमपी कैटेगरी में 1 सीट है और ओपन कैटेगरी में भी 1 सीट है। जो जिसके हायर इंटेक से उसकी बात की जाए, देखिए वैदेही में अगर आप देखिए तो वैदेही में जीएमपी में 1 सीट है और ओपन कैटेगरी में वैदेही में एक भी सीट नहीं, ओपन कैटेगरी में एक भी सीट नहीं डाला है इन्होंने। तो दिस इज द सिचुएशन। देखिए सप्तगिरी में भी जीएमपी में 1 है और ओपन कैटेगरी में 1 है। तो अगर पूरे कर्नाटक की आप लिस्ट देख लें तो ओपन कैटेगरी में केवल 11 सीटें हैं आपको कर्नाटका में, और वही जीएमपी कैटेगरी में 6 सीटें हैं। फिर आपको जीएमपीएच में 3 सीट आती है, एमसी कैटेगरी में 2 सीट आती है, एमईएच कैटेगरी में 1 सीट आती है और एमएम कैटेगरी में 1 आती है और एमयू कैटेगरी में 1 आती है। तो दिस इज द कंडीशन। तो अगर सारी चीज को आप कैलकुलेट कर लें तो आपको जो है प्राइवेट कोटा की सीट जो टोटल आपको इसमें दिखेंगी पूरे कर्नाटका में, वो देखेंगे आपको 11, 6, 17, 20, 22 और 23 सीट्स।
23 सीट्स आपको डर्मेटोलॉजी की ओपन कैटेगरी, आई मीन नॉट ओपन कैटेगरी, ये प्राइवेट कोटा की सीट्स में। तो प्राइवेट कोटा में भी बाइफर्केशन है, ओपन कैटेगरी अलग है, जीएमपी अलग है, जीएमपीएच अलग है। अगर आप नॉन कर्नाटका स्टूडेंट हैं, नॉन कर्नाटका डोमिसाइल होल्डर हैं, तो यू विल कम इन ओपन कैटेगरी, जिसके में आपको 11 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आपने कर्नाटका से एमबीबीएस किया तो यू विल कम इन जीएमपी कैटेगरी, जिसके लिए आपको 6 सीट्स अवेलेबल हैं। इसीलिए कट ऑफ जो है वो बहुत हायर साइड पे रहता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप 50,000 के ऊपर रैंक में हैं तो द ओनली ऑप्शन इज थ्रू एनआरआई कैटेगरी। ऑलवेज अप्रोच एमडीएमएस इन कर्नाटका थ्रू एनआरआई कैटेगरी इफ यू आर ऑन द हायर साइड ऑफ द रैंक ब्रैकेट। वेल, लेट अस डिस्कस अबाउट द फी स्ट्रक्चर नाउ। फी स्ट्रक्चर जो है हम लोग कुछ कॉलेज का यहां पे एनआरआई कैटेगरी की फी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। एंड कीप वन थिंग इन माइंड कि दिस फी स्ट्रक्चर व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज द पर एनम फीस। जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे, जेजेएम के पास 4 सीटें हैं एनआरआई कैटेगरी। और देखिए एनआरआई कैटेगरी और अदर्स कैटेगरी की फीस सेम रहती है। तो 4 सीट जो है वो जेजेएम के पास है, तो जिसकी फीस 90,15,500 पर एनम है, 90,15,500 पर एनम है। हायर फीस वाले कॉलेज को जैसे हमने बोला था कि टारगेट करना है, वैदेही हो गया, एजे हो गया, सप्तगिरी हो गया, आकाश हो गया और जेजेएम हो गया। देखिए जेजेएम का ये जो 90 लाख का फीस है वो इसमें इस साल आपको फीस में इंक्रीमेंट दिखेगा। वैदेही की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 करोड़ 25 lakhs, 1 करोड़ 25 लाख रुपीज पर एनम इज द फीस स्ट्रक्चर ऑफ वैदेही। नाउ जस्ट इमेजिन द फीस इज ऑन द हायर साइड, देयर इंटेक इज ऑन द हायर साइड। वैदेही के पास कितने का इंटेक है, लेट अस सी अगेन, एक्सक्यूज मी। देखिए वैदेही मेडिकल कॉलेज के पास जो इंटेक है वो 4 सीट की इंटेक है। तो देखिए 4 सीट पे उन्होंने फीस रखा है 1 करोड़ 25 लाख। इंटेक भी ज्यादा है, फीस भी ज्यादा है। देयर विल ऑलवेज बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द अलॉटमेंट इन दिस हायर फीस स्ट्रक्चर एंड हायर इंटेक। एजे के पास भी, एजे का इंटेक कितना है, एजे का जो इंटेक है आपको 4, एजे के पास भी 4 सीट है। तो 4 सीट में इनकी भी फीस 1 करोड़ 25 लाख है। सप्तगिरी का इंटेक 5 का है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए फीस है। तो देखिए ये सारे कॉलेजेस को, अगर देखिए एमडीएमएस जब आप करते हैं तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अगर आप हायर साइड ऑफ द रैंक में हैं, हायर साइड ऑफ द रैंक ब्रैकेट में है, तो यू नीड टू अप्रोच एमडीएमएस इन कर्नाटका थ्रू अ वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी एंड ऑलवेज अप्रोच थ्रू एनआरआई कोटा। अब स्ट्रेटेजी में क्या है कि एनआरआई को टारगेट करे, अब उसमें भी किसको टारगेट करे, जिस कॉलेज की फीस ज्यादा है और जिस कॉलेज का इंटेक ज्यादा है, तब आपको प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा है, हायर साइड पे है अलॉटमेंट मिलने की। एसएस दावणगिरी की फीस देख रहे हैं आप, एसएस दावणगिरी की 90 लाख रुपए फीस है, निजलिंगप्पा की 80 लाख है, अंबेडकर की 88 लाख है। अब देखिए जैसे अंबेडकर है, अंबेडकर में 2 सीटें हैं, 88 लाख रुपीस फीस है, तो आपको यहां पे तो अलॉटमेंट मिलेगा ही नहीं, बहुत लो प्रोबेबिलिटी हो जाती है अलॉटमेंट मिलने की। तो फ्रेंड्स देखिए जब भी आप एमडीएमएस को टारगेट कर रहे हैं कर्नाटका में, और खास करके परसेंटाइल रिडक्शन के बाद जब आप एलिजिबल हो रहे हैं, तब आपको अगर अप्रोच कर रहे हैं तो ऑलवेज अप्रोच एमडीएमएस इन कर्नाटका थ्रू अ वेल प्लान्ड strategy. Target those colleges whose fee structure is high, target those colleges whose intake is high, then there will be high probability of getting the allotment in Karnataka for MDMS course. तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो MD डर्मेटोलॉजी के रिगार्डिंग, MD डर्मेटोलॉजी इन कर्नाटका के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग MDMS काउंसलिंग एंड नीट PG 2024 एडमिशंस। थैंक यू फ्रेंड्स।